your very own Sunyapa right now on your screen to sing a song. Oh no, to English, Hindi, we have a trilingual time. All our lovely viewers have just who are exposed to a wide variety of languages have cognitive skill and better problem skills. So relax and enjoy the complete trilingual storytime session with us today. So the name of today's story is Eidgah. It's a Hindustani story. Premchand. And Eidgah is a story about his grandmother Amina. Hamid and his grandmother Amina. Hamid and Amina lived in a village. But story, let me ask, what is an Eidgah? The name of the story says Eidgah. Eidgah is a masjid or mosque where people offer prayers in Islam. It's a place of worship and people gather here for Eid celebrations. Yes. Now let me go to the story. What story is about? Eidgah is a story about, like I said, Hamid and his mother. They lived in a village which was lush, green, and filled with nature's bounty, rivers, ponds, greenery around. And Hamid loved spending time with his grandmother and his 4 friends. He had 4 friends. And who were they? They were Mahmoud, Mohsin, Noore, and Shami. Like the way I am narrating the story to you all, the same way Grandma Amina used to narrate stories to Hamid and his friends. Lovely stories Grandma used to narrate to them. It was Eid time, and Eid comes after 30 days of Ramzan fasting. The whole village was bustling with activity, and someone wanted their kurta button to be stitched. He was running to the neighbor's house to get a needle and thread. Shoes got stiff, and he was running to the cobbler to get it made. So all were at the Eidgah. Okay. For offering prayers at the Eidgah and to visit the variety fair. You know, in our country, there are lots of fairs like International Trade Fair, Trade Fair, so on. Right now, the city is it is also now. So Shali, Mela, Fab exhibition, oh, so many. Not only grown-ups like me, but kids are also excited to go to the fair. Similarly, all the kids of the village were also excited to go to the fair and to offer prayers at the Eidgah as well. Oh, then they had to dress up, they had to
put on their skull caps and go to the Eidgah. You know, when we go to the fair, do we carry a little bit of money in our pockets? Yes. And all these kids were excited because they had little money in their pockets to buy countless things. Could be a toy, could be sweets, and many more. I remember when I was a little kid and I used to go to my village during holidays or during festival time. My grandmother used to give me some paise, maybe 40-50 paise to buy goodies. Since this story, let me tell you, since this story had been written almost about, say, 80 years ago, or little more than 80, money in paise carried a lot of value then. Hamid's friend Mahmood had 12 paise and Mohsin had 15 paise. They all were so excited with that money. You know what they were doing? They were taking out the money from their pocket, counting them, again putting it back. Again, they were taking it out, counting them and putting it back. They were so excited to have the money in their pockets. They had countless things to buy. And you know, Hamid was the happiest of all. You know why? Not because he had lots of money in his pocket, but he was filled with love and hope. Grandma Amina stitches clothes for a living. She had stitched a beautiful dress for her neighbor and had got 8 paise as her stitching charge. And what did Grandma Amina do? She kept 5 paise in her purse. For what? For buying milk for Hamid so that he becomes strong. Milk is good for health. Yes, and give 3 paise to Hamid so that he can go to the fair and buy any goodies for himself. All the villagers had gathered up now to visit the Eidgah and the fair. So all were dressed up and they were ready to go. But Grandma Amina was sitting worried and sad in her small room because she was worried about the little boy. If he gets lost in the crowd, she was scared to allow such a young boy, 5-year young boy, to go to the Eidgah and the fair along with others. But Hamid was a innocent but smart and intelligent chap. He ran up to Grandma's lap because that was Hamid's favorite destination and said, "Don't you worry, Amma. I will be the first one to return back home. You just don't get afraid or scared of anything." Amina sought the blessings of our Khuda and sought the protection of the child. So all the villagers had grouped up. They had to go. The Eidgah was quite a distance from the village. So they had to walk and visit the Eidgah. It seemed as if Hamid's feet had grown wings. He was flying as if he was so excited to visit the Eidgah. And when everyone started their journey from the village to the Eidgah,
Hamid used to run fast and take a lead and then wait for the others to join back. And again, when everyone again met at a point, he again ran. Likewise, while they were approaching the city, they saw big, tall buildings inside. So they realized that the Eidgah is nearing. And while on their way, they saw that groups of people were nicely dressed in shiny, bright clothes and going towards the Eidgah. Hamid and all his friends were super excited to go there. And suddenly the Eidgah was in sight. It was nicely decorated. And it was under the shade of a tamarind tree. Imli tree? No, imli tree? Yeah, it's a tamarind tree. See, lovely tamarinds hanging from the tree. And the floor of the Eidgah was nicely carpeted for the people to offer namaz at the Eidgah. So everyone reached the Eidgah, they offered prayers and then hugged each other, embraced each other and exchanged Eid greetings. After the Eid greetings and all was over, where was the place they had to go? They had to go to the variety fair area. Yes, and all the kids who? Hamid, Mahmoud, Mohsin, Noore, Shammi, all of them were going to the play area first. Okay, and let me tell you, when you don't go with your parents and you have gone in a group, you should never go divert yourself and go alone. You should always remain in the group so that you don't get lost. So what these 5 little kids always formed a group and they saw there was a giant wheel and the person in every fair, they call out for the customers so that they come. The person at the giant wheel was saying, pay 1 paise, take a ride. And then there was a merry-go-round. There the person was saying, pay 1 paise and take 10 rounds. All the kids were excited. Mahmoud, Mohsin, Noore, Shammi all went and sat on the merry-go-round. And where did they sit on? There were camels, horses, ducks hanging on from iron rods. And they went on, sat on the merry-go-round and took 10 rounds and came. But Hamid did not go. He stood at a distance and watched his friends taking the ride. He said, why should I waste 1/3 of my money on just taking a few rides? Why should I pay 1 paise to take just a few rides for momentary pleasure? No, I'm not going to spend my money on this ride. So he didn't go and take the ride. The children got down from the merry-go-round. They were super excited, but by then they were a little hungry. So where did they go? They came to the sweet shop. Oh my God, such lovely, yummy sweets laid out nicely. My mouth has also started watering. Revdi, rasmalai, rasgulla, gulab jamun, son halwa. Oof. All were excited to eat them and take a bite. But, oh God, they were so excited to take a bite. But Hamid again stepped aside and said, no. Books say that sweets cause
cavities in the teeth. I am not going to eat them. And also they developed many illnesses. So I am not going to spend my money on eating all these sweets. And he stood quietly there till his friends finished eating. He cannot go alone here and there. He might get lost. After they finished eating, they went to the most coveted area, the toy shop, the most attraction area for the kids. There, the toy shop had clay toys, small clay toys made of clay. And they were trying to find out which one to pick. Should I pick up a glass? Should I pick up a policeman? Should I pick up an elephant? Oh, while they were kind of Mohsin, Mahmood, Noore, Shammi, they were deciding on what to buy. Hamid, though his eyes were craving at the toys, his hands wanted to hold a toy, but he had 3 paise in his pocket. He didn't want to spend money on the toys. And how much were the toys for? The shopkeeper said, 2 paise for 1 toy. He said, oh, these toys are so expensive. I am not going to spend my money on these toys, clay toys. The moment they slip from my hand, they'll break and then gone. And a little splash of water on the toy and it gets discolored. No. For momentary pleasure, I am not going to buy. See, he was such a smart and intelligent child. And then he said, okay, let me go. While he was moving, his eyes fell on a shop selling metal things. Things made from tin, made from iron. The shopkeeper was selling metal things. And what did he see there? He saw a pair of tongs there. And immediately his thoughts went to his grandma. Said, Dadi doesn't have one. Oh, this little boy had thought that grandma did not have a tongue. Her fingers get burnt when she makes chapatis for me. She gets hurt. But what happened? Hamid went to the shopkeeper and said, how much is this tong for? How much is this tong for? The shopkeeper said, this is not for you. But he said, anyways, 6 paise for 1 tong. Hamid's heart sank. He had only 3 paise in his pocket. And what to do now? Quietly he went to the shopkeeper and said, I can pay 3 paise only. And started walking away, fearing an angry retort from the shopkeeper. But the shopkeeper did not shout back. He said, okay, take it for 3 paise. And Hamid was super excited as if he has achieved something. And what did he do? He held the tongue, put it on his shoulders and walked as if he has achieved a lot, and like a soldier, he was marching as if he has kept a rifle on his shoulder. Then, while he was going, all his friends, Mahmood, Mohsin, Noore, Shammi, all
laughed at him, said, Shamim, what have you got for you? A Tom? But Hamid was a smart, intelligent boy. What did he do? He immediately said, and he threw the Tom on the ground and said, throw your toys, throw your clay toys on the ground. But none of them threw because they knew clay toys will break and everything is gone. But by then, neither did they have the money nor the time to buy a Tom. But all his friends were mesmerized with his idea of buying a Tom, that this is so useful. Hamid also explained. He said, this Tom can be used to turn chapatis, and also, like in villages, people borrow fire also from the chula. So what you can do is, you can like carry a firewood and give it to your neighbor so that they can light their chula. Oh, their friends were kind of astonished. Oh, this is such a useful thing. But by then, it was getting sunnier and it was almost around 11 o'clock when they arrived at the village, and the village was alive again. For what? All the fair goers had come back, and those who were in the village wanted to see what all these people have bought from the fair. What happened? When Mohsin was holding his toy, his sister came running and snatched the toy from his hand. And out of joy, while she was jumping, the toy slipped from her hand, fell on the ground and crashed and cracked, and it was gone. Hamid screamed, "Oh no, it's gone!" Then Grandma Amina heard Hamid's voice and she came running. She lifted him up in her lap, fondled him with love and affection, hugged him, kissed him. When she noticed a tongue in Hamid's hand and she asked, "What is this? Where did you get this from?" Hamid said, "I bought it from the fair, Amma." "For how much?" asked Amma. "For 3 paise, Amma, I bought this." Amina was shocked and annoyed and said, "What a foolish boy you are! You spent 3 paise for this toy. You could have eaten something. You could have bought a toy for yourself to play with. But you bought this." Hamid, a little guilt in his heart, said, "Your fingers get burnt, Amma, when you make chapatis. For that reason, I bought this tongue for you so that it is useful at home." Immediately, Amina's anger melted into affection. Tears rolled down her cheeks as she hugged tightly the little boy who had so much love, care, generosity, thoughtfulness in bringing this item. He had gone to visit the fair, but there also he was thinking about his grandmother. She was touched, she was overwhelmed, and she had no words to express her feelings. She blessed the little child immensely and prayed to her Lord that everything goes really fine with this boy, and blessed for his thoughtfulness and kindness. So this was about the story of Eidgah. The story
of Eidgah gives us a lovely message of love, sacrifice, motherhood, thoughtfulness, kindness, and many more. We as educators, we as facilitators, we as parents, and we as superiors, we always believe in experiential learning, and that children learn best by doing. And actually, children are like sponges. They absorb everything from the environment. So, whatever we as elders, we as parents, we as practitioners of education, whatever qualities we demonstrate, those become the habits of our little ones. So let's spread kindness and let's demonstrate goodness. It definitely has a ripple effect. So this is Sonia Path signing off for today for another day. But wait, like I said in the beginning, this is a trilingual story time session and we have now the story in Hindi. And who's going to do this narration? Our bubbly Shelly Didi. Over to you, Shelly. कैसे हो बच्चों? स्टोरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो? तो जल्दी से अल्टी पल्टी लगाकर बैठ जाओ। मैं आपकी अपनी शैली दीदी आई हूँ सुनाने आपको कहानी ईदगाह की। तो चलो सुने कहानी, चलो सुने कहानी, चलो सुने कहानी। तो ईदगाह सुनेंगे कहानी हम ईदगाह की। पर ईदगाह क्या है? ईदगाह वो स्थान है जहाँ इस्लाम धर्म के लोग एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। तो ये है ईदगाह। तो चलो अब हम सुने कहानी। तो ये कहानी है एक गांव की। जी हाँ, एक गांव की। गांव तो बड़ा ही खूबसूरत है। तो अब उस गांव में आज ईद मनाई जा रही है। रमजान के पूरे 30 दिनों बाद आज ईद आई है। गांव में घरों में कई पकवान बन रहे हैं, लोग नए नए कपड़े पहन के हैं। ईद में हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही गांव में सभी लोग नए कपड़े पहने हैं। किसी के घर में मिठाइयां बन रही हैं, किसी के घर में खुशबूदार पकवान मिठाइयां बन रही हैं। तो सबसे ज्यादा खुश कौन है? सबसे ज्यादा खुश है बच्चे। जी हाँ, जैसे आप खुश होते हो कोई त्योहार आने से, वैसे ही सबसे ज्यादा खुश है हमारे बच्चे। बच्चे क्यों खुश हैं? बच्चे ईदगाह जाने की खुशी मना रहे हैं। और दूसरी ओर क्या लगा हुआ है ईदगाह के पास? मेला लगा हुआ है। जी हाँ, तो बच्चे इतने खुश हैं, बार बार जेब से पैसे निकालते, गिनते और वापस रख देते। बार बार जेब से पैसे निकालते, गिनते और वापस रख देते। महमूद गिनता 1, 2, 10, 12। उसके पास कुल 12 पैसे हैं। वसीम के पास 15 पैसे हैं। और वहां एक छोटा बच्चा भी है जो कि 5 साल का है, जिसका नाम है हामिद। जी हाँ, हामिद। हामिद एक 5 साल का पतला दुबला लड़का है। वो गांव में अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। बच्चे तो बहुत खुश है, सबसे ज्यादा खुश है हामिद। उसको ईदगाह जाना है और वहां मेले में घूमना है। एक तरफ जहां सब खुशियां मना रहे हैं, दूसरी ओर अमीना अपनी कोठरी में बैठी उदास है। पर क्यों? क्योंकि आज ईद है और उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। उसके पास 8 पैसे थे, जिसमें से उसने हामिद को 3 पैसे दिए और 5 पैसे अपने बटुए में रखे। और गांव से बच्चों का मेला निकलता है। जी हाँ, बच्चे तो बहुत खुश हैं।
मेला निकलता है, उनके पैरों में तो मानो जैसे पर ही लग गए हो। जाजिस और ताकते बस ताकते ही रह जाते। आप कभी मेले में गए हो? कितनी अच्छी अच्छी दुकानें लगती हैं, कितने अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। वैसे ही बच्चों की आंखों में तो मानो जैसे तारे ही चमक गए थे। कभी इधर इस ओर ताकते तो कभी उस ओर ताकते। इधर खिलौने की दुकान, उधर मिठाई की दुकान, उधर कपड़े की दुकान, इधर चप्पल की दुकान। कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पे। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? उनको दिखाई देता है शहंशाह ईदगाह। इमली के घने वृक्ष के नीचे पके फर्श पर कालीन बिछा हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक है। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए सब लोग नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। और उसके बाद कहाँ जाते हैं? उसके बाद जाते हैं मेले में। जी हाँ, मेले में। और जब मेले में आगे जाते हैं तो ये क्या है? झूला। कितनी सारी झूले दुकानें सब लगी हुई हैं। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं झूला देखकर। 1 पैसे में 10 चक्कर के मजे लो। ये सुनकर बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं और दौड़ते हुए झूले की ओर जाते हैं। महमूद, मौसिन, समय, नूरे सब झूले में बैठते हैं। और हामिद हामिद दूर खड़ा सबको देख मुस्कुराता है और कहता है, मैं अपने पैसे कुछ चक्कर खाने के लिए क्यों बर्बाद करूं? 3 ही तो पैसे हैं मेरे पास। मैं नहीं जाऊंगा झूला झूलने। और सब बच्चे झूले से उतरकर हामिद के पास आते हैं और कहते हैं, हामिद हमें तो बहुत ही मजा आया, तुमको भी जाना चाहिए था। हामिद कहता है, मैं अपने पैसे नहीं बर्बाद करना चाहता कुछ चक्कर खाने के लिए। और ये कहकर सब बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उनको कौन सी दुकान दिखाई देती है? कौन सी दुकान है? मिठाई की दुकान। वहां खुशबू सुनते ही बच्चे तो मानो उनके मुंह में पानी आ जाता है। आप भी जब मेले में जाते हो, आप मिठाई खाते हो ना, वैसे ही आप भी तो मेरे तो वहां कौन कौन सी मिठाइयां हैं? वहां है लड्डू, गुलाब जामुन, जलेबी, सोहन हलवा। बच्चों के मुंह में तो पानी आ गया। सब बच्चे जाते हैं रेवड़ियां, गुलाब जामुन, लड्डू खाने। और उसी वक्त हामिद दूर खड़ा सबको देख मुस्कुराता है और कहता है कि किताबों में तो इसके बारे में कितनी बुराइयां लिखी हैं। मैं नहीं खाऊंगा मिठाई। वैसे भी दादी ने तो घर में सेवैयां बनाई है, आज ईद है, उसको कौन खाएगा? मैं तो पेट भर कर जाके घर पे खाऊंगा। मैं नहीं ये मिठाई खाने वाला। उसी वक्त महमूद कहता है कि हामिद एक रेवड़ी तो खा ले। तो हामिद कहता है, ना बाबा, दांत खराब हो जाएंगे, किताबों में तो बहुत कुछ बुराइयां लिखी है मिठाई की, मैं नहीं खाने वाला। ये कहकर हामिद आगे बढ़ता है और उसके साथ उसके दोस्त भी आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जाके वो कहाँ जाते हैं? जैसे कि आपको जो दुकान पसंद है, वैसे ही इन बच्चों को भी वो दुकान पसंद है। खिलौने की दुकान पर जाते हैं। और बस बच्चे तो इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी इधर ताकते, कभी उधर ताकते। इतने खिलौने, छोटे बड़े मिट्टी के खिलौने। जी हाँ, किसके खिलौने? मिट्टी के खिलौने। बच्चे बस, महमूद कहता मेरे को ये खिलौना चाहिए, मोहसिन कहता मेरे को वो खिलौना चाहिए। बच्चे खिलौने देखकर उनकी आंखों में तो तारे ही चमक उठते हैं। सब बच्चे जब खिलौने खरीद रहे होते हैं, तब दूर खड़ा हामिद सबको देख मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे खिलौने की जरूरत नहीं है। दादी मेरी बहुत अच्छे अच्छे मिट्टी के खिलौने बना देगी मेरे लिए और मैं उस पे रंग दे दूंगा। ये तो उससे भी सुंदर खिलौने बन जाएंगे। मुझे नहीं खरीदना खिलौना, और वैसे भी मैं क्यों खिलौने मिट्टी के खिलौने खरीदूं, पैसे बर्बाद करूं? 3 ही तो पैसे हैं मेरे पास। ये कहता हुआ हामिद
अपना मन बहला लेता है, क्योंकि उसको अपने पैसे इधर उधर कहीं बर्बाद ना करने थे। महमूद, मोहसिन सब खिलौने खरीद कर हामिद को लाके दिखाते हैं। देख हामिद, हमने ये खिलौना खरीदा, देख हामिद, हमने ये खरीदा। और हामिद कहता, जरा सी ठोकर बजे ये गिर गया और टूट जाएगा, मैं ना ही पैसे बर्बाद करूंगा इसे मिट्टी के खिलौने खरीदने में। ये कहकर बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे जा रहे होते हैं तो हामिद एक दुकान देखकर रुक जाता है। और हामिद क्या कहता है? हामिद को कौन सी दुकान दिखती है? हामिद को दिखता है लोहे का दुकान। हामिद को लोहे का दुकान दिखता है। और हामिद वहां क्या देखता है? वहां एक चिमटा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक चिमटा। और हामिद को वहां ख्याल आता है, दादी जब रोटियां बनाती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। अगर मैं ये चिमटा खरीद कर दादी को दे दूं तो दादी की उंगलियां ना जलेंगी, दादी बहुत खुश हो जाएगी और मुझे दुआएं देंगी। ये कहते हुए हामिद दुकानदार के पास जाता है और पूछता है, भैया भैया ये चिमटा कितने का दिया? दुकानदार कहता है, 6 पैसे लगेंगे, 6 पैसे। हामिद का मन वहीं बैठ जाता है। हामिद कहता है, मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं और ये चिमटा 6 पैसे का है, अब मैं क्या करूंगा? ये कहता हुआ हामिद उदास होकर आगे बढ़ता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि 3 पैसे में ले लो बेटा। पता नहीं उस दुकानदार को क्या हुआ, उसने वो चिमटा 3 पैसे में दे दिया। आगे जब बढ़ते वक्त हामिद की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। हामिद वो चिमटे को कंधे पे ऐसे रख के चलता कि मानो बंदूक हो, अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास जाता है। तभी उसके दोस्त हंसने लगते हैं कि हामिद तूने ये क्या ले आया, चिमटा, तू इसका क्या करेगा? हामिद कहता है, ये मेरी पसंद है, और कहकर चिमटे को नीचे फेंक देता है और कहता है महमूद से कि तुम अपना खिलौना नीचे फेंक कर दिखाओ, क्या तुम फेंक सकते हो? महमूद का खिलौना किससे बना हुआ होता है? महमूद का खिलौना मिट्टी से बना होता है और वो जमीन में गिरकर टूट जाता है। महमूद उदास हो जाता है क्योंकि महमूद के पास तो पैसे ना थे दूसरा नया खिलौना खरीदने के लिए। ये कहकर हामिद हंसता है, हा हा हा, मेरा चिमटा, कहकर आगे बढ़ते हैं। और कहाँ जाते हैं? किस ओर जाते हैं? दोबारा अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव में तो मानो हलचल सी मच जाती है कि मेले वाले आए हैं, मेले वाले आए हैं। ये सुनकर मोहसिन की बहन दौड़ी चली आती है मोहसिन के पास और वो खिलौना मोहसिन के हाथ से ले लेती है और मानो ऐसे उछली खिलौना जमीन पर गिरकर टूट जाता है। क्योंकि खिलौना किससे बना होता है? खिलौना तो मिट्टी का था ना, गिरेगा तो टूट ही जाएगा। ये देखकर हामिद की हंसी फिर छूट जाती है। हामिद कहता है, मेरा चिमटा तो सबसे अच्छा है, कहकर वो अपने घर की ओर जाता है और घर के बाहर क्या करता है? गाना गाता है। कौन सा गाना? दादी अम्मा प्यार करो, दादी अम्मा जरा देखो, दादी अम्मा देखो देखो दादी अम्मा, कहकर तो वो क्या करता है? दादी ये सुनकर कोठरी से बाहर आती है और कहती है, अरे मेरा बेटा आ गया मेले से, कहकर गोद में हामिद को उठा लेती है और प्यार करने लगती है। और उस वक्त दादी ने क्या देखा? दादी ने हामिद के हाथों में ये चिमटा देखा और दादी चौंक जाती है कि ये क्या ले आया चिमटा। हामिद बड़ी खुशी से कहता है, मैंने खरीदा है पूरे 3 पैसे में। दादी कहती है, या अल्लाह, ये क्या ले आया, कैसा नासमझ लड़का है, दोपहर हो गई, ना खाया ना पिया, ना इतने खिलौने थे ना खरीदा, कुछ ना किया, ये चिमटा ले आया। तभी हामिद कहता है, दादी मुझे आपसे कुछ कहना है।
और चिमटा दिखाकर कहता है, आपकी उंगलियां जल जाती है ना दादी, जब आप रोटियां सेकती हो। अब ये चिमटा है, आपकी उंगलियां ना जलेंगी। दादी का गुस्सा तुरंत ही प्यार में बदल जाता है। दादी कहती है, कैसा लड़का है ये, क्या संस्कार, कितना प्यार, त्याग, कितनी सद्भाव और विवेक है इस बच्चे में। इतनी सारी चीजें थी मेले में, मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, उसका मन कितना ललचाया होगा ये सब देखकर। पर उसको वहां भी अपनी बूढ़ी दादी की याद आई और उसने ये चिमटा लाया अपनी दादी के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें अपने बड़ों से ही प्यार, त्याग, सद्भाव सीखने को मिलता है और हमें हमेशा बड़ों के साथ प्रेम में रहना चाहिए। तो ये थी कहानी ईदगाह की शैली दीदी की जुबानी। अब हम मिलेंगे अगली बार। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, कहाँ चले? अभी तो ये कहानी बाकी है, आपकी सारी नानी की जुबानी। बाबुला, ए बाबुला, आज परा शनिवार, कौन करछु सेठी? बोलो की कहिबी शनिवार दिनर कथा। अरे कहूनु, कौन हैला? शनिवार दिन आमकु नाकुनी मन, शनिवार दिन आमकु नाकुनी मन, छन 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 हुए सारा दिन। अच्छा, किंतु कहिकी? गप शुणिबा पाइकी। गप कहिबो किए? आज्ञा नमस्कार। गप मु कहिबी, आपणकर सारी नानी। गपटी नहीं आसीची एथर बुढ़ी माँ और नातीर कहानी। गपटीर ना हेउची ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह। ईदगाह माने जेउठी इस्लाम धर्मर शह शह भाई माने एका संगे बसी नमाज पाठ करती। रमजान मासर 30 दिन परे आसे ईद। से दिन इस्लाम धर्मर भाई माने ईदगाह जाती, सेठी नमाज पाठ करती। नमाज पढ़ी सारिबा परे परस्पर को आलिंगन करी ईद मुबारक जनाती। ईदगाह विषय तो जानिले, एबे आमे सुनिबा गप। छोट मोर गाँटी, छोट मोर गाँटी, भूगोल पोथी पतरे पछे, भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाटी। छोट मोर गाँटी, भूगोल बहिरे गाँटीर ना नाही सत, किंतु गाँटी भारी सुंदर। छोट बड़ पहाड़ पर्वत सांगकू नई कूल, धान खेत, सबुज सबुज मारे परिपूर्ण गाँटी। 5 वर्षर कुनी पुआ हमीद, तार बुढ़ी माँ अमीना सह सेई गाँ रे रहुतिला। ये होची हमर अमीना। अमीनार ये होची हमर हमीद, आ ये होची हमर बुढ़ी माँ। हमीदर परिवार कहले बुढ़ी माँ और हमीद। बुढ़ी माँ नाच गीत शुणी हमीद पिला दिन कटुला। बुढ़ी माँ पणत कानी तार झुलना। बुढ़ी माँ कोଳରେ मुंड दे हमीद आराम रे सोई पड़ुला। किंतु वर्ष सारा हमीद अपेक्षा करी रही था ईद को। काहीकि जानिଛ? ईद आसिले से ईदगाह बुली जीव। ईदगाह को लागे पड़े विराट बड़ मेला, ढेर सारा जिनिस सेठु किणिकी नहीं आसीबो। आज हमीदर मन भारी खुशी। काहीकि जानिଛ? आज ईद, गाँ रे पूरा चल चंचल लगी रही। लोक माने निज निज सजबाजरे लागी पड़छन्ती। किए नुआ ड्रेस पिंधुची तो किए नुआ जोता, केही केही टंका गणिबारे व्यस्त। सबठार बेसी खुशी थिले गाँर पिला माने। मोहम्मद, महसिन, नूरे, सामी, अनेक पिला। मोहम्मद बाहर कला पॉकेट रू पैसा। 1 2 3 5 12 पैसा अच्छे मोहम्मद पाखरे। महसिन पाखरे अछि 15 पैसा। सब पिला भारी खुशी अच्छे ईदगाह जीव।
ईदगार सकाळ हमीद को पूरा नुआ लगुथिला। गछ गुड़िक भारी सतेज दिसुथिले। आकाशरे सूर्य चमकुथिले। सूर्यଙ୍କ शीतल किरण ईद रो आशीर्वाद परि मने होथिला। बुढ़ी माँ हमीद को सज करदेले ईदगाह जीवा पाई। सफा सुतरा ड्रेस पिंधे दे टोपीटे पिंधे देले। बुढ़ी माँ पाखरे कम पैसा थिला। हमीद को 3 पैसा दे कहिले मेला रे मिठा किणी खाइबो। मेला रे ढेर सारा लोक सांग मानक सहित रहिबो नहेले हजि जिबो। हमीद सबु कथा सुनी मुंडटी टुंगारी बुढ़ी माँ को हाँ मारिला। बुढ़ी माँ को कोले धरी कहिला तू जम्मा व्यस्त हेबुनी मु शीघ्र फेरी आसीबी। बुढ़ी मार मन की माने। हमीद गला परे घर को जाई खूब कांदिला। एते छोट पिलाटी 3 किलोमीटर बाट केमिति एका चली चली जीव। घर काम सारी दे हमीद रो फेरिबा बाट को चाही बसिला। हमीद सांग मानक सह गप मजा करी जाई पहुंचिला कोठी शहर रे ईदगाह। शहर रो चित्र पूरा नियारा थिला हमीद पाई। ऊंचा ऊंचा कोठा घर संग को घर सामनार बगीचा देखी हमीद को लागुथिला जेंति से टीवी रे सिनेमा देखुची। रंग बेरंगर भली की भली गाड़ी संग को लोकों को लागिची धाड़ी के धाड़ी ईदगाह जीवा पाई। ईदगाह रो सजबाज देखी हमीद रो आखि पूरा झलसी गला। ईदगाह को लागी रहिची विराट बड़ तेंतुली गछ पूरा ढांकी की रखिची ईदगाह। सह सह इस्लाम धर्मर भाई माने एका संगे बसी नमाज पाठ करुचंती। नमाज पढ़ी सारिबा परे परस्पर को आलिंगन करी ईद मुबारक जणाइले। पाखरे थिबा मेला बुलिबाकू मेला आडको मुहाइले। हमीद भी ता सांग मानक सह मेला बुलिबाकू गले। मेला देखि भारी खुशी। केते विराट बड़ा मेला। ढेर सारा दुकान कोन किनिबो सेठी। मिठा दुकान, खेलना दुकान, जूता दुकान, ड्रेस दुकान, बॉल अच्छी, बिगुल अच्छी, दोली अच्छी, कौन किनिबो से? पॉकेट रो बाहर कला 3 पैसा। दादी मां देचंती, बुढ़ी देखि चर्चा करबो। हमीद्र संग माने मोहम्मद, मोहसिन, नूरे मिठा दुकान को दौड़िले मिठा खाइबा पाई। भली भली गुलाब जामुन नहीं बहुत सारा मिठाई रखा होची। हमीद को भी इच्छा होतिला खाइबा पाई। सांग माने भी डाकिले हमीद को आसे खाइबो। हमीद को मने पड़िला बुढ़ी माँ भारी टेस्टी खाइची। बेसी मिठा खाइबा देह पाई भलो नुह। से मिठा खाई काहे की पैसा खर्च करबो। पॉकेट रू पैसा बाहर कला गणी पूरी पॉकेट रे रखी देला। मिठा दुकान रो मुह फेरी गला खेलना दुकान। माटी रो खेलना गुडी सज होई की रही। दुकानी भाई डाकुचंदी भली की भली माटी खेलना 3 पैसा को पैसे उणा। पैसा को पैसे उणा। हमें दूर रे छिडा होई भाबुची अच्छा 3 पैसा को पैसे उणा माने गोटे खेलना को 2 पैसा। माटी खेलना किंतु हमीद को इच्छा होतिला जाई टिके खेलना को टिके धरिबा पाई टिके आंसिबा पाई। हमीद रे संग माने मोहम्मद, मोहसिन, नूरे दौड़ी के जाई गोटे परे गोटे माटी रो खेलना किनिबा को लागिले। हमीद कहिला बुढ़ी माँ मो पाई माटी रो छोट छोट खेलना घरे बनै दे। मु जदी ता देरे टिके रंग मारी देबी ठीक एंती दिसिबो। माटी खेलना किनी गाय खर्च करबी। माटी खेलना रू मुह फेरी आगो को चलिला। दुकानी भाई जने दूर रे खाई डाकुचंती एठिकी आसो पाहाच दोली रे बस। गोटे राउंड को 10 पैसा। तळु ऊपर ऊपर तळ बसिबा लोकर मन चंचल। हमीद दूर रे छिड़ाई टिके चाहिला। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे हमीद रो संग माने दौड़िले दोली रे बसिबा पाई। हमीद कहिला ए केते राउंड चक्कर काटिबा पाई गोटे पैसा मु खर्च करबी। 3टी ही पैसा मो पाखरे अछि। मु दोली रे बसी पैसा खर्च करबी नाही। फेरी सेठू आसिला। हमीद रे आखि किछि अलगा खोजतिला। नजर पड़िला लुहा दुकान ऊपर।
विभिन्न साइज रो चिमुटा रखा होइछि सेठी। हमिद्र मने पड़िला बुढ़ी माँ रुटी कला बेले तार हाथ जली जाए कारण ता पाखरे चिमुटा नहीं। मु जदि गोटे चिमुटा नै जिबी बुढ़ी माँ भारी खुशी हबो, मते कोल को टाणी नै ढेर सारा आशीर्वाद दबो। दोकानी अंकल को पचारला, अंकल चिमुटार दाम केते? अंकल कहले गोटे चिमुटा को 6 पैसा। किंतु हमिद पाखरे 3टी ही पैसा अछि। कौन करिबो? टिके समय रही साहस संचय करी पुणी दुकानी पाखକୁ गला आउ पचारला, अंकल 3 पैसा रे देबे? प्रथमे तो दुकानी अंकल मना करिदेले, तापरे कौन भाबिले 3 पैसा रे चिमुटाटी धरे देले हमिद हातरे। हमिद चिमुटा पाई भारी खुशी, ताको जेमती स्वर्गर चांद मिली जाइछि। चिमुटा को कांधरे रखी एमिति चालू थाए जेमिति से कांधरे बंदूक रखी देश सेवा करबा को जाउछि। हमिद्र सांग माने चिमुटा को देखि पचारिले, अरे हमिद मेला रे ढेर सारा दुकान अछि, ढेर सारा खेलना अछि, चिमुटा कहि किनिचु कहि हसिले। हमिद किछि न पाई हसी दे सेठी चली गला। चली चली आगे आगे गाँ आड़ को मुहाइला। देखो देखो गाँ सारा लोक पहुंची गले। देखो देखो मेलार लोक सब पहुंची गले गाँ रे जाई। गाँ सारा लोक दौड़ी के उठी आसिले, कौन अछि कौन आनिचंती सब मेलार देखिबा पाई। मोहम्मद मोहसिन नूरे देखिबा ए जो माटीर खेलना गुडी को पाई सब टाटणी हेले। हमिद्र पाटी सुनी बुढ़ी माँ दौड़ी के आसिले। धरी घरे देखि पचारिले, अरे हमिद ये कौन? एटा कोठी नै के आसिलु? हमिद कहिले, मारो 3 के आनी। अच्छा 3 पैसा मो दे मेलारू मिठा किनी के खाय पाई। सकाळ जाई दिन 2 पहर हेलाणी न खाई न पी मेलारू चिमुटा किनी के नै आसिलु काहे की मेला रे कोन किछि मिलु नथिला? हमिद कहिला, तुमे रुटी कला तम हाथ जळी जाए कारण तम पाखे चिमुटा नाही, सेति पे मु गोटे चिमुटा किनी के नै आसिली। एबे रुटी कला बेले तुम हाथ आ जळीबनी, तुमे रुटी करिवो आमे दुहे खुशी रे खाइबा। बुढ़ी माँ हमिद्र कथा सुनी चुप ही बसी पड़िले चौकी उपरे। आखिरु ठक ठक लुह बही जाउथे। कोल को टाणी आनिले हमिद, मुंड को आउची ढेर सारा आशीर्वाद देले। कहिले धन्य तोर संस्कार सद्भावना और त्याग। मेला रे केते कोन जिनिस मिलुथिबो न खाई न पी सेठी भी तते बुढ़ी माँ कथा मने पड़िला चिमुटाटी नै आसिलु। पिला माने आमर जेजेमा जेजेबापा अजा आई आमको खूब भल पाती, आमर जत्न नियंती। आमर ए टिके टिके खुशी ताको बहुत आनंद दे। आम घरर संस्कार संस्कृति आमको अनेक किछि शिक्षा दे थाए। स्नेह श्रद्धा भल पाइबा त्याग सद्भावना पिला माने आम ठारू ही शिखि थांती। ये तो थिला बुढ़ी माँ और नातीर कहानी माने ईदगाह कहानी। आज पाई रहिली, नमस्कार। पुणी थरे देखा हबो आ गोटे गप को नै। Thank you so much for joining us, and this was about the story of Eidgah. And this story actually reminded me of a few lines from a prayer, and let me sing it for you to listen. ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। Let's have kindness everywhere we lay our foot on, because love, kindness, generosity, care
always have a ripple effect and they spread. So let's make this world a beautiful place. Thank you so much for joining us today. Till we meet again, bye-bye. But maintain social distancing and keep the masks on. Thank you so much.